Hi everyone, very good morning and welcome back to CGB Mentors. So जब आप ये क्लास देख रहे हैं, it is 15th of August, right? And a very happy Independence Day to all of you. And इंडिपेंडेंस डे मनाने के साथ साथ हम ये हमारी छोटी सी क्लास भी देख लेंगे. इस क्लास में what I have done is that in past 2-3 days, whatever subtopics were I was not able to complete. The reason being regulatory news were so many and obviously they were a bit difficult to understand. तो हमने उन सभी न्यूज़ को समझ लिया है and now we will be talking about these smaller but important news, right? तो ये छोटी छोटी कुछ न्यूज़ थी जो कि मैंने सोचा कि हमें ज़रूर करनी चाहिए. So let's talk about them. See, number one news is NASA has invited ISRO to join its moon-based program under the Artemis Accord, right? So ये Artemis Accords क्या हैं? Basically ये NASA और US गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जहाँ पर ये लोग क्या ट्राई कर रहे हैं, not just moon but Mars as well as the other celestial bodies. ठीक है, ये वहाँ पर जाकर एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं. They want to do the scientific studies, right? और then they want to know कि how they can be beneficial for the human race. हम ये जानना चाहते हैं कि हाँ, हम लोगों के लिए ये कैसे beneficial होगा. So what they have done now is they have invited ISRO also. देखो ISRO ने ये अकॉर्ड 2023 में ही साइन कर लिया. It's not new something for ISRO, right? हमने तो ये पहले ही साइन कर लिया था, पर अभी ISRO को बुलाया जा रहा है कि आप मून बेस्ड प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए. Now I had a question in my mind कि how it is beneficial for us, हमारे लिए क्या अच्छा है, why should we be part of it, right? So you will remember कि अभी हमारा एक गगनयान प्रोग्राम आ रहा है. कौन सा प्रोग्राम है? गगनयान प्रोग्राम. And in that particular program what we are trying is कि हम we can take human to space और पूरा टेक्नोलॉजी बिल्डअप करने में हम लगे हुए हैं. So what if we can learn something good out of this, right? हम कुछ अच्छा सीख सकते हैं, हम अपने प्रोग्राम में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. So for all those reasons ISRO will be joining this thing, right? So NASA ने ISRO को मून बेस्ड प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए बुलाया है. Now what you need to know over here, ISRO ने already Artemis Accord ज्वाइन कर लिया था 2023 में. अभी 70 countries are currently member. अच्छा, ISRO कब बना था भाई? 1969 में. हेडक्वार्टर्स कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटका. एंड ISRO के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर वी नारायणन. कौन है? डॉक्टर वी नारायणन. ठीक है, डन. Now next is this report, India's most valuable family businesses worth 138 trillion rupees added 4076 crores per day. ठीक है, ये एक रिपोर्ट है. किसकी रिपोर्ट है? 2026 बार्क्लेज प्राइवेट क्लाइंट्स हुरॉन इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेसेस लिस्ट. ठीक है, ये एक बार्क्लेज की रिपोर्ट है जहां पे फैमिली बिजनेसेस को वैल्यू किया गया है. इंडिया के जो 300 मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस हैं, नाउ दे आर हैविंग द वर्थ ऑफ 138 lakh crore. This is equivalent to 18th largest economy globally. अगर मतलब सिर्फ इन लोगों की एक इकोनॉमी होती तो वो दुनिया में 18th largest होती. And it is ahead of the countries like the Netherlands, Saudi Arabia, Switzerland as well as the Poland, right? Now what is important for here for us to know? Not much. Top 5 families they have talked about. Number 1 is obviously Ambani family. Now then we have Kumar Mangalam Birla family, Jindal family, Bajaj family and Mahindra family. Now out of that हमें ये याद रखना है कि अगर हेडक्वार्टर्स की बात करें, so which city is the most important in India? ठीक है, अगर इनके हम हेडक्वार्टर्स की बात करें तो मुंबई बिगेस्ट हेडक्वार्टर है फॉर कंपनीज. ओके, किससे पता चलता है? बार्क्लेज की 2026 रिपोर्ट से. किससे पता चलता है? बार्क्लेज की 2026 रिपोर्ट से. फाइन. नाउ नेक्स्ट वी हैव this news article. So just a second. Yes. So now over here Black Necked Crane Festival ये लद्दाख में मनाया जा रहा है. So I was curious to know कि भाई why? So number 1, Black Necked Crane is a state bird of जो आपका लद्दाख के लिए ये एक स्पेशल बर्ड है. because Ladakh is not a state, so I should not say that. Ladakh के लिए ये special bird है. It is the only alpine crane in the world
जो यहाँ पे इस एलिवेशन पे सिचुएटेड है, right? It is the official state bird for the Union territory of Ladakh, but I don't know how they say it. For a union territory, they are saying the state bird, but I feel like okay, it's a special bird of Ladakh. ये वहाँ के ecosystem को represent कर रही है, right? आप देखिए 5000 meters के altitude पे this bird is thriving over there. So that is why it is very very important. और ये पहला black necked crane festival है, पहला, because it is the first one, so hence it becomes important for us. यहाँ पे एक चांगतांग कोल्ड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है लद्दाख में. इट इज द ओनली ब्रीडिंग प्लेस फॉर दिस इन इंडिया, राइट? अच्छा, ये चांगतांग एक और चीज के लिए फेमस है. कुछ दिन पहले मैंने आपको GI टैग्स पढ़ाए थे, राइट? आई हैव taught you GI tags. Now you need to tell me कि चांगतांग और GI tag के बीच में क्या relation है. Will you be able to tell me that? I would wait for it, right? Whether you are able to tell me that or not. So चांगतांग और GI टैग के बीच का रिलेशन आप मुझे बताएंगे. याद रखिएगा, ब्लैक नेक्ड क्रेन फेस्टिवल लद्दाख में फर्स्ट एवर ब्लैक नेक्ड क्रेन फेस्टिवल हो रहा है. ऑफिशियल स्टेट बर्ड है फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, राइट? देन देर आर सम स्मॉलर न्यूज आइटम्स, जैसे कि लेबनान हैज अबॉलिश्ड द डेथ penalty and it has become the first country in the Arab world to do that. See, death penalty अभी हमने भी abolish नहीं की है, but it is given in the rarest of the rare circumstances, right? It's not like कि हाँ किसी ने अगर heinous crime किया है, so we will give that person death penalty. We don't do that usually because it is considered in a civilized nation. This is not something which gives the measure of your civility. ठीक है, इससे तो हमें नहीं पता चलता है कि इससे आपका civilization नजर आता है या फिर नहीं आता है, राइट? सो ये पहली कंट्री बनी है जिसने डेथ पेनल्टी को अबॉलिश कर दिया है. इट्स अ ग्रेट थिंग. काफी सारे लोग इसके पॉजिटिव में भी रेस्पॉन्स देते हैं, नेगेटिव में भी रेस्पॉन्स देते हैं, एंड अकॉर्डिंगली वी नीड टू मैनेज. नाउ अ ग्लोबल रेटिंग्स एजेंसी है फिच रेटिंग दैट हैज अफर्म्ड इंडिया सॉवरेन रेटिंग एट BBB- विद अ स्टेबल आउटलुक. देखो क्या होता है, मैंने आपको ये बहुत बार पढ़ाया है. क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कौन सी होती हैं? जो आपके इंस्टीट्यूशन या आपके देश को क्रेडिट रेटिंग देती हैं बेस्ड ऑन योर पास्ट परफॉर्मेंसेस. ठीक है, आपकी पिछली परफॉर्मेंसेस कैसी रही हैं. नाउ यू वुड लाइक टू आस्क मी व्हाट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस. सो बेसिकली दे वांट टू जज दैट अगर आपने पहले टाइम में लोन लिया था और इफ यू हैव बोरोड, राइट, इफ यू हैव बोरोड, वर यू एबल टू पे दैट पर्टिकुलर अमाउंट. क्या आप वो अमाउंट पे कर पाए थे या फिर नहीं कर पाए थे. सो ऑन दैट बेसिस दे गिव यू द रेटिंग एंड दैट रेटिंग इज यूजफुल. वो किस वजह से यूजफुल है भाई? टू जज, राइट, कि अगर कोई इन्वेस्टर है वो आप में इन्वेस्ट करना चाहता है, वेदर दे शुड इन्वेस्ट और नॉट, राइट. सो ऑल दिस थिंग्स फॉर दैट इज इंपॉर्टेंट. अब BBB- रेटिंग ऐसे चलती है, देखो, AAA, AA, BBB, BBB, right, and then you have C rating, but it is investment grade rating, but it is not too far from junk rating. Junk rating क्या होती है? अगर आप C level पे आपको किसी ने रेट कर दिया तो you are junk. So it is जस्ट ऑन मार्जिन. आपने सिर्फ एक मार्जिन पे हमको रेट किया है, वो भी BBB-. इसके लिए देखो, इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो आपकी हैं, जैसे कि फिच हो गया या आपका मूडीज हो गया या S&P हो गया, इनको हमने हमेशा क्रिटिसाइज किया है. दे हैव ऑलवेज बीन लाइक दिस, राइट. एशियन कंट्रीज से इनका थोड़ा प्रॉब्लम है. अब मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रही हूँ एशियन कंट्रीज. हमारा एक इकोनॉमिक सर्वे आया था, आई एम नॉट श्योर कि 2021 का था या 2022 का था. वहां पे एक चैप्टर था कि जब भी कोई ग्रो करता है, ये जो वेस्टर्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं ये उसको बहुत ज़्यादा अच्छा क्रेडिट रेटिंग नहीं देते. जैसे कि बैक इन 2000 व्हेन चाइना वाज ट्राइंग टू ग्रो, तब भी उनको बहुत ज़्यादा अच्छी रेटिंग नहीं दी गई थी, राइट. सो दैट्स व्हाट आवर इकोनॉमिक सर्वे सेज, एंड इन्होंने BBB- दी है. इंडिया में 33 एलिफेंट रिजर्व्स हैं. आपको नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट मोस्टली ऐसा होता है कि जैसे जो आपके टाइगर रिजर्व्स होते हैं उन्हीं के आसपास आपके एलिफेंट रिजर्व्स भी होते हैं. नाउ द रीजनिंग इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बिकॉज वहीं पे फॉरेस्ट हैं, जहां अल्टीमेटली फॉरेस्ट बचे हुए हैं, वहीं पे आपके एलिफेंट्स, टाइगर्स एंड द अदर एनिमल्स दे आर थ्राइविंग, राइट. सो मोस्टली ये आसपास ही होते हैं.
Now next is Asia's first desert themed drive through night safari. दोस्तों desert themed, इससे पहले भी हमारे यहाँ एक नाइट सफारी है, आपको बताना है कहाँ पर है, राइट? इससे पहले भी एक नाइट सफारी है, पर वो कहाँ पे है? ये डेजर्ट थीम नाइट सफारी कहाँ पे आई है भाई? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में, इन बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट गुजरात, राइट? बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट गुजरात। तो अगर आपसे बात की जाए डेजर्ट थीम वाली नाइट सफारी, दैट इज इन गुजरात, ठीक है। Now next we have Rahul Naveen. He has been appointed as the Director of Enforcement Directorate. ED is an institution, right? Comes under the Department of Revenue, fine. And they obviously handle the Prevention of Money Laundering Act. इससे related वो सारी चीजें देखते हैं, and इनको डायरेक्टर बनाया गया है राहुल नवीन को। Then we have International Tribunal for the Laws of Sea. इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपके सी के थ्रू ही ज्यादातर ट्रेड होता है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कंजर्व इट, वी understand what are the natural laws and we follow it. There should be one institution to see all that, and that is why we have the International Tribunal for the Law of Sea. And who has been appointed as person for this? Judge who has been appointed? Bimal N. Patel. Bimal N. Patel. Now some of the sports events that we need to talk about. So number one, we have the Asian Junior Weightlifting Championship. Asian Junior Weightlifting Championship. Asian Weightlifting Championship है दोस्तों, उज्बेकिस्तान में हो रही है. So in the Men's Junior 60 kg category, 60 kg category में तमचो मेहती गोल्ड, राइट? तमचो मेहती गोल्ड. 65 kgs में we have the Maharajan Arumuga Panadian फ्रॉम इंडिया, राइट? इनको क्या मिला है? सिल्वर मिला है. क्या मिला है? सिल्वर मिला है. ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं. देन वी हैव द कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप है ये. तो यहाँ पे सिंगल्स चैंपियन अश्मिता चालीहा, हर फर्स्ट BWF टाइटल. अश्मिता चालीहा, क्या नाम है? अश्मिता चालीहा. अच्छा, जो आपकी एशियन जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हो रही है, ये कहाँ हो रही है? उज्बेकिस्तान में. कहाँ हो रही है? उज्बेकिस्तान में. हु इज द गोल्ड विनर ओवर हियर? तो तोमचो मेहती इन दी 60 kg कैटेगरी. तोमचो मेहती इन दी 60 kg कैटेगरी. ये तो हमें याद रखना ही रखना है. Then you have World Athletics Under 20 Championship. वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 कहाँ हो रहा है भाई? यूएसए में. कहाँ हो रहा है? यूएसए में. यहाँ पे आप दो चीज याद रखना. हाई जंप में बसंत कुमार मेघवाल. यूएसए में कौन जीत के आए हैं? बसंत कुमार मेघवाल. कौन जीत के आए हैं? बसंत कुमार मेघवाल. कहाँ पे? अंडर 20 चैंपियनशिप, जो कि कहाँ हो रही है? यूएसए में, ठीक है. एंड जैवलिन थ्रो में सिल्वर मिला है आशीष यादव जी को. किसको मिला है? सिल्वर मिला है आशीष यादव जी को. देन वी हैव 9th वर्ल्ड ब्रिज फेडरेशन यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप, चाइना में हो रही है. ब्रिज फेडरेशन, राइट? और ये बहुत ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट अगर याद रखना चाहें तो गोल्ड साग्निक को मिला है. साग्निक रॉय एंड दी सायंतन कुशारी. Sagnik Roy and Sayantan Kushari. I remember there is one student in my class whose name is also Sagnik, right? तो 9th World Bridge Federation Youth Transnational Championship कहाँ हो रहा है? चाइना में. And gold मिला है Sagnik Roy को and the Sayantan Kushari. Then we have the squash championship. सुमैयर विद्या विहार यूनिवर्सिटी मुंबई में इंडिया को सिल्वर मेडल मिला है. कौन जीता है? सूरज कुमार चांद became the first Indian to win gold in men's individual category. Right now, FISU World University Squash Championship. जो ये आपका स्क्वाश का गेम है, इसका ओलंपिक डेब्यू होने वाला है LA में in 2028. कहाँ होने वाला है? LA में in 2028. Now, इंडिविजुअल कैटेगरी में सूरज कुमार चांद जी को मिला है. अदरवाइज जो है हमने सिल्वर मेडल जीता है. नाउ नेक्स्ट इज वीओ चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी इन थुथुकुडी तमिलनाडु. ये पहला पोर्ट बना है कंट्री में जिसको ISO 50,001 2018 सर्टिफिकेशन मिला है. देखो ये सर्टिफिकेशन क्या है? ये जो ना 50,001 ये सीरीज है एनर्जी मैनेजमेंट वाली कि क्या आप ढंग से एनर्जी मैनेज कर रहे हैं कि नहीं. तो ये पहला पोर्ट बना है जिसको एनर्जी मैनेजमेंट के लिए सर्टिफिकेशन मिला है दैट दे आर रियली वेल मैनेजिंग दी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स.
Then we have PM Narendra Modi inaugurated Param Pragya. It is AI-enabled high-performance supercomputing facility at the IIT Delhi campus. Param Pragya. Param series के हमारे सुपर कंप्यूटर्स होते हैं. They can do the calculation in seconds, जो कि आपके नॉर्मल कंप्यूटर्स को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वो आपके सुपर कंप्यूटर्स बहुत क्विकली कर सकते हैं. देन आपका एक टाइफून डॉल्फिन है जो चाइना में आया है, तो याद रखना टाइफून डॉल्फिन. अच्छा, आपको ये याद होगा कि एरिया के हिसाब से हम नाम लेते हैं. अगर इंडियन ओशन में डेवलप हुआ है दिस लो प्रेशर सिस्टम ऑफ रेन एंड विंड, तो हम उसको साइक्लोन कहते हैं, राइट. और अगर चाइना वाले पैसिफिक ओशन में डेवलप हुआ है तो हम उसको क्या कहते हैं, टाइफून कहते हैं. और अगर अटलांटिक ओशन में डेवलप हुआ है तो हम उसको हरिकेन कहते हैं. क्या कहते हैं, हरिकेन. फिर एक सेबी की एनुअल रिपोर्ट से एक आपका डेटा था, म्यूचुअल फंड्स का एसेट अंडर मैनेजमेंट. कितने एसेट्स हो गए म्यूचुअल फंड्स के पास, 73.7 लाख करोड़. कितना, 73.7 लाख करोड़. और हमारे यूनिक इन्वेस्टर्स कितने हैं, 6.1 करोड़. कितने हैं, 6.1 करोड़. देन वी हैव छोटी सी और न्यूज, फ्लिपकार्ट मिनट्स का एक नया प्राइवेट लेबल आया है, पाइक्ड फॉर द ग्रोसरी डिलीवरी. ओके, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि ये जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, 1 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर अगर सिर्फ 1 किलोमीटर रह जाएगा तो वहां पर आप डेवलप नहीं करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज सेंसिटिव एरिया. ठीक है, बॉर्डर से 1 किलोमीटर तक इट इज सेंसिटिव एरिया और वहां पे ये प्रोजेक्ट्स डेवलप नहीं होंगे. एशियाटिक लॉयन की पॉपुलेशन कितनी हो गई है, 891 in 2025. 891 in 2025. So with that we have covered the slides which were pending, and I hope you would quickly see this short and sweet video. Now when I will come on Monday, I hope आपने पिछले 2-3 दिन का रिवाइज किया हो और मैं आपसे वो सारी चीजें पूछूंगी. This is it for today. Thank you so much for joining in.